reversible word derivation, will it be asked? Tell me. The reversible word derivation. Reversible word derivation will be asked. Will they ask us to derive it? Generally, they don't ask you guys to derive the reversible work. A better person to ask the question is your teacher. Okay? Because if it was board examination, then I can tell you regarding board examination based on the previous year question papers of CBSE. But in 11th standard, what happens is this teachers, like each and every school, they have different teachers and they decide the question paper. So a better person to ask is your teacher actually. Fine, no, this is for everyone. Like if you want like important questions, then ask your school teacher, because what is important to them may not be important to me. Okay? So generally my idea of important is in 11th standard, there are some concepts which you should know in order to the chemistry be easy on the 12th standard. So the links, the chains, 11 to 12, those things are important for me, but it is not important for each and every teacher. Okay? Chaliye. Just give me a second. Let us start 19th December, Tuesday. What were we doing? If water vapor, how to change it now? Acha, we have just done delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Fine. And this is also done. Okay. Right, next. Now write question, okay, which is there in your NCERT. You can just fetch it up. Page 107. You write a question that I don't think it is there in your NCERT. Reaction of cyanamide. Reaction of cyanamide with oxygen gas gives out heat at constant volume. Gives out heat at constant volume, which is measured to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change for this reaction. They will give you the reaction, that is NH2 CN solid plus 3/2 O2
just gas. It gives you 1 mole of N2 gas and 1 mole of CO2 gas and 1 mole of water. And water is liquid, है ना? ठीक है, चलिए राइट दिस क्वेश्चन. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, बट इट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट. धीरे धीरे सवाल को पढ़ के समझेंगे. थर्मोडायनेमिक्स इज अ चैप्टर ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है. वर्ड्स में नंबर छुपे होते हैं. आई मीन नंबर इन द सेंस ऐसा नहीं कि FIVE लिखा रहेगा या फिर डबल लिखा रहेगा, ट्रिपल लिखा रहेगा. दीज टाइप ऑफ न्यूमरिक वर्ड्स यू मस्ट हैव लर्नड इन मैथ्स 10th स्टैंडर्ड में, है ना. बट यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीजें जो नंबर्स बताते हैं. यू विल नॉट इवन मतलब यू विल नॉट इवन थिंक दैट ओके फाइन दीज आर टेलिंग मी नंबर्स. डन राइटिंग द क्वेश्चन, यस और नो? प्लीज टेल मी. यस सर. ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे. देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम फोकस करना चाहते हैं, आई वांट टू टीच यू गाइस वेयर टू फोकस. सवाल में व्हाट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज. है, ध्यान दीजिए सभी कोई. रिएक्शन ऑफ साइनामाइड with oxygen gas. Now this part is not very important. Reaction of cyanamide with oxygen gas, because we are learning about thermodynamics. We are learning about heat and everything, right? किसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंट, है ना. स्पीशीज की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आप. गिव्स आउट, दिस इज इंपॉर्टेंट, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम which is measured to be 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. This number तो important है ही. At 298 Kelvin. Calculate the enthalpy. Enthalpy मतलब they are asking for delta H, enthalpy change. ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए, flip some pages. और जब भी हम लोग इंटरनल एनर्जी की चेंज के बारे में बात करते हैं, देन व्हाट इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सेक्शन देखिए, ऐसे करके जो हमने बनाया हुआ ना इस तरह से, ऐसे ऐसे. इसमें देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम. फ्लिप योर पेजेस. आई वांट द आंसर एटलीस्ट की कांस्टेंट वॉल्यूम है या नहीं. डेल्टा E internal plus W. डेल्टा व्हाट? No, that was physics. Sorry. नहीं फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री. आप नोटबुक में देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला. इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में हमने लिखा था ना, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, ऑल ऑफ दीस थिंग्स. The CV one. नॉन CV कहाँ पढ़ाया अभी हमने. आप नोटबुक में देखो ना भाई, नोटबुक में देखने को, याद नहीं करने. आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू रिमेंबर, प्लीज लिसन टू मी. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दीज थिंग्स. When I ask you guys to remember, तो याद करने की कोशिश कीजिए. When I am saying to look in your notebook, आप नोटबुक में देखिए, बिकॉज हमें पता है आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं होगी. You have to search in the notebook कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ होगा. कांस्टेंट वॉल्यूम, Delta U is equals to Q. हाँ वेरी गुड नोहा. क्या आपने ध्यान दिया था इस चीज पे नोहा, या फिर अभी दिखा आपको? अभी देखा सर. अभी देखा आपने भी, ठीक है. डेल्टा U इट इज इक्वल टू Q. कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, लेकिन देखिए कैसे ही बातों में इन्होंने आपको डेल्टा U दिया है, बिकॉज दे आर सेइंग इट इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बोला ही नहीं उन्होंने, दे डिड नॉट से, बट इट इज देयर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो डेल्टा U इट इज इक्वल टू हाउ मच, -742.7 किलो जूल है. इसको कर दीजिए आप 10⁻³ जूल पर मोल, बिकॉज वी विल बी टेकिंग एज जूल, है ना.
टी आपका क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 298 केल्विन। अब आपसे पूछा क्या है, डेल्टा एच पूछा है। डेल्टा एच यू डोंट नो, वी नो द फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, है ना। तो डेल्टा एन जी आपको याद करना पड़ेगा, you'll have to see what is the delta ng. Delta ng is equal to number of moles of gases in the product. प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है 1 मोल 2 मोल। ये वाटर जो है ना लिक्विड स्टेट में है, बिकॉज 298 केल्विन इज टू 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में पानी लिक्विड में रहेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द प्रोडक्ट इज हाउ मच, 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट इज हाउ मच, दिस इज तो सॉलिड तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, 3/2 O2, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.5। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0.5 और 1/2, इसमें से जो आसानी होगा कैलकुलेशन में उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, द फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू हाउ मच, -742 को हटा के 700 कर देता है ना, 10⁻³ है ना, तो 3 फाइन, प्लस आई थिंक हाफ करना बेहतर रहेगा डेल्टा एन जी के लिए, बिकॉज 298 वगैरह कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो हाफ इंटू 8.314, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल करके होता है, मल्टीप्लाइड बाय 298, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। चलिए, सबको समझ में आया इस में गाइस? आमना, खदीजा, नुहा एंड रिशिता, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। चलिए प्लीज कॉल कर देता हूँ। Once you're done, you will tell me the answer.
So I got minus 741,461.214. minus 741,461. 461.214. ठीक, उतना it's fine, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केसेस में ना आई विल सजेस्ट दैट 298 को 300 भी ले सकते हैं आप, ठीक है, टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आंसर। द अप्रोक्सीमेट आंसर इज गोइंग टू बी minus 741,461 joule per mole, and when you are going to convert it to kilojoule, because values kilojoule में थी, you will get minus 741.5 कर सकते हैं इसको, राइट, किलोजूल पर मोल। चलिए, so till now we have seen there are two different formulas for delta H, एक thermodynamics में यूज होगा और एक thermochemistry में यूज होगा, ठीक है। Thermodynamics means in general you can use it when you are having pressure change, volume change type की चीजें। The thermochemistry formula is used in reactions and everything. It is delta H, it is equal to delta U plus delta Ng RT, and we have delta H is equal to delta U plus P delta V. Now from these two equations there are two generalizations that we can write. In this case, if you see, if delta Ng is equal to 0, ठीक है, if लिख लेंगे, you can write like this, change कर लेते हैं जरा। If delta Ng is equal to 0, then what we will write? Delta H is equal to delta U. Enthalpy is equal to internal energy. And here what we can write? If delta V is equal to 0, then delta H will be equal to delta U. Done everyone? Yes, sir. अब देखिए, अब थोड़ा जो है ना कंसेप्चुअल चीज है, इसको थोड़ा समझिएगा। Think about a device which can measure energy change. I'll give you a few seconds. Think about a device which can be used to measure energy change. हाँ जी, tell me guys. A clearometer or something like that. No, no. Device which can, ठीक है, I understand why you are saying that, आपको स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन कैलोरीमीटर में वो नहीं आता है। You don't, it does not give you the energy, ठीक है, मतलब जब हम बोल रहे हैं ना, Calorimeter. what, sorry? Calorimeter. I don't know what it's called for sure. हाँ, but still कैलोरीमीटर आपको, there is no display in calorimeter which is going to give you, okay fine, this many joules of energy, ठीक है। कैलोरीमीटर में आपको वो नहीं मिलता है। इवन इफ यू लुक एट, अब देख लीजिएगा कैलोरीमीटर वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू फिल ऑयल ना इन पेट्रोल पंप्स, बाहर में यू विल सी दैट देयर इज छोटा सा स्टेशन टाइप है जहां से आप यू कैन फिल एयर इन द टायर्स, एंड देयर वी हैव अ डिवाइस व्हिच कैन गिव यू द प्रेशर इनसाइड द टायर्स, ठीक है।
मैनोमीटर, बैरोमीटर, these are what devices which will measure your pressure. वो छोड़ दिए, ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस होती है, दैट डिवाइस टेल्स यू द प्रेशर, कैलोरीमीटर टेल्स यू द टेम्परेचर, और फिर एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है. सो इफ यू थिंक अबाउट इट ना, देयर इज नो डिवाइस विच इज गोइंग टू गिव यू एनर्जी. There is no way of measuring the energy or energy change of a system. What we can measure is the change in temperature. Change in temperature. Now, using this change in temperature, using the change in temperature we are getting, we have to devise a formula in order to get what? In order to get the delta H or delta U, the energy change in general, if I say. Make sense? Yes or no? Please tell me. क्या ख्याल है? Yes, sir. Fine. Now, when we are going to measure the change in temperature, जब टेम्परेचर चेंज करने की बात आएगी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी, in this body the change in temperature delta T, it is equal to, let us suppose, 20 degree Celsius. ठीक है. And here is a body, and in this the delta T, it was equal to 2 degree Celsius. तो क्या ख्याल है आपका, ज्यादा एनर्जी कहाँ पे, मतलब व्हाट इज द डेल्टा ई मोर, कहाँ पे ज्यादा होगा, ए केस या बी केस? एनर्जी चेंज ज्यादा कहाँ पे हुआ है? A. A case, ठीक है, it seems like it. But if I add one more information, this body, the system that we are talking about, it is having, let's suppose 20 ml of water. ठीक है. आपने इसको हीट दिया, and whatever amount of heat you gave, उतना ही एनर्जी चेंज हुआ होगा. So I can say that change in energy, it is equivalent to Q. मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन की बात नहीं कर रहे. जो एनर्जी चेंज होगा, that will be equal to Q, 20 ml of water. And let us suppose ये जो 2 degree Celsius जो change हुआ है, let us suppose here we were having 20,000 liters of H2O. ठीक है. अब बताइए कहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, ए केस या बी केस? B case. B case. That means not only temperature, rather we should also know what is the amount of substance जिसकी टेम्परेचर चेंज हो रही है, जिसकी टेम्परेचर क्या हो रही है, चेंज हो रही है. वी हैव टू नो दैट आल्सो. नाउ दिस एबिलिटी टू मतलब सोचिए आप 2000 लीटर ऑफ वाटर जो है, इसमें बहुत ज्यादा हीट दिया होगा आपने, तब जाके 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ होगा. दैट मीन्स the capacity to hold heat of 20,000 liters is much high than that of 20 ml of water. Fine, that is one thing. ये तो आपको डिपेंड कर, देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज किया, आई हैव जस्ट चेंज दी क्वांटिटी ऑफ वाटर. मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, राइट. इफ यू आर गोइंग टू हीट, आई डोंट नो, आयरन आप हीट कीजिए और फिर मतलब पतला स्टील आप हीट कीजिए, सो आई थिंक स्टील विल हीट अप मोर इजिली एंड मोर फास्टली. फाइन. सो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट मटेरियल. मेक सेंस? एक तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, एंड ऑल्सो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल, हाउ मच हीट कैन इट होल्ड, how much heat can it hold. We have to see that also, and we have to first of all understand that portion, that is heat capacity, which is something new for us right here. Heat capacity. जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. दैट मींस a high amount of heat is also going to give it less change in temperature. Now please see, हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. वी विल से दैट द अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग टू अ सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट दैट यू आर गिविंग टू अ सिस्टम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उतना ही ज्यादा आपने हीट दिया है फॉर अ सिस्टम. ठीक है. नाउ वी विल पुट अप अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q, इट इज इक्वल टू C delta T. Now the C term, it is the heat capacity. C क्या है? C it is equal to Q divided by delta T. ठीक है. C क्या है? Q divided by delta T. C is a constant. Now whenever we have to define a constant, what do we do? आप इन दोनों को 1 1 कर लीजिए. ठीक है. So how do we define C? C को डिफाइन करने के लिए प्लीज C. C को डिफाइन करने के लिए प्लीज C. Heat capacity of a substance is the heat required by the system
to increase the temperature of system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. 1 degree Celsius और 1 Kelvin, ठीक है. आई होप यू गाइस नो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन जो चेंज होता है ना, इंक्रीज की जब बात करें तो चेंज हो रहा है, इट इज सेम थिंग. इसमें एक डाउट है क्या किसी को, सर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों को आपने बराबर कैसे लिख दिया? आई एम सेइंग व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, देन 1 degree Celsius is equal to 1 Kelvin. If you have doubt, please tell me now. Yes, I was about to ask that because even if the change in temperature, it will differ, right, sir? ठीक है, देखते हैं. लेट अस सपोज आप हैं 298 केल्विन, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू 300 केल्विन. व्हाट इज द डेल्टा टी? 2 केल्विन. Yes, sir. 298 corresponds to how many degrees Celsius? 25. Yes, sir. And 300 will correspond to 30. No, 27. delta T. Okay. The numerical value doesn't matter. हाँ, चेंज में मैटर नहीं करता है. When we are talking about change in temperature, जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स की बात करेंगे, then it is for obviously it is going to matter when we are talking about absolute, ठीक है, बट चेंज में वो मैटर नहीं कर रहा है. यू कैन सी दैट, राइट? Yes, sir. ठीक है, चेंज में वो मैटर नहीं कर रहा है. when we are talking about increase in the temperature, we are talking about change. इंक्रीज का मतलब चेंज ही होता है. तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, जिधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा है उसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए. तो डेल्टा टी जब क्या हो जाए, 1. It is the heat required when delta T increase in temperature is 1 degree Celsius. It is a generic way of defining proportionality constant. फिजिक्स में भी ऐसे ही यूज होता है, ठीक है. चलिए, हीट कैपेसिटी हो गया ना. हीट कैपेसिटी होती है दो तरीके की, प्लीज राइट. हीट कैपेसिटी, what are the two types of heat capacity? एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है. दिस डिपेंड्स ऑन मास. और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है. बेसिकली मोलर का मतलब 1 मोल के लिए जितना होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय Q डिवाइड बाय डेल्टा टी. बेसिकली ये होता है, देखिए इसको पहले लिख देते हैं. इट इज द हीट कैपेसिटी पर ग्राम, मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम. और मोलर हीट कैपेसिटी को CM ऐसे डिनोट किया जाता है. मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर मोल, ठीक है. नाउ वी हैव जस्ट सीन C को कैसे लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय डेल्टा टी इनटू मास इन ग्राम्स, ठीक है. CM को कैसे लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय डेल्टा टी इनटू द नंबर ऑफ मोल्स. This is Q and not A. Please write this down. Done, sir. डन, ठीक है. यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा.
heat capacity is an extensive property, but specific heat capacity and molar heat capacity are intensive property. Heat capacity is extensive because Q it is equal to C delta T. ठीक है, अगर आप C की बात करें C is equal to Q upon delta T. जितना आई मीन इफ यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो वहां पे आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा. ठीक है, तो इट वुड डिपेंड ऑन द मास ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है. बट व्हेन आई डू पर मोल तो ये डेंसिटी जैसा हो जाएगा, है ना, दैट पर मोल और पर ग्राम. पर ग्राम, पर ग्राम मतलब हमने क्या किया, आई हैव फिक्स्ड द मास पर ग्राम. एक ग्राम में व्हाट इज द हीट कैपेसिटी. ठीक है, एक ग्राम का क्या है हीट कैपेसिटी, हाउ मच हीट कैन इट होल्ड 1 ग्राम. सो अब हाउ इट कैन बी एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव का मतलब व्हेन मास इंक्रीज, मास इंक्रीज करना ही नहीं है, बिकॉज बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम and molar heat capacity is defined for 1 mole. When you are not when you have been restricted to increase the mass, आप increase कर ही नहीं सकते, automatically it becomes what, it becomes an intensive property. ठीक है, specific heat capacity and molar heat capacities are going to be intensive property. Heat capacity in general will be a extensive property. Small amount of water will have less heat capacity, large amount of water will have more heat capacity. अब जो heat capacity, it is further divided into two different parts depending on how we are going to measure it. ठीक है, लिखिएगा हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी को दो और इसमें बांटा गया है, एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दी क्या कहते हैं इसको, बिकॉज ऑफ दी डिवाइसेस दैट वेर मेड. रोटेट, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. heat capacity at constant volume, and heat capacity at constant pressure. फाइन. कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को बोलते हैं सीवी, कांस्टेंट प्रेशर वाले को बोलते हैं सीपी. सीवी की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, हीट रिलीज होगा दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम. heat released at constant volume, this will be equal to CV delta T, and heat released at constant volume, it is equal to delta U. ठीक है, CP that is constant pressure. So heat released at constant pressure, it is equal to CP delta T, and this will be equal to heat released at constant pressure, heat measured at constant pressure, we know that it is enthalpy delta H. ये पुरानी चीजें हैं. Q is equal to delta V at constant volume, and Q is equal to delta H at constant pressure. याद है ना? हाँ जी, बताएं. Yes, sir. I hope it is not new for you guys. चलिए छापिए जरा. एक आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV. ठीक है, यू विल लीव लाइक हाफ पेज छोड़ के उसको समझ के बिल्कुल अच्छे से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आराम से इसको आप कर सकते हैं. ठीक है, there is not going to be much problem in that. If you want, I can also show you guys. ठीक है, इस तरह से इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. इसको लिख लीजिएगा, अभी मत लिखिएगा, घर पे जाके आराम से पढ़ पढ़ के लिखिएगा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिलेशनशिप. ये डिराइव करने आ जाता है कई बार, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशनशिप. फाइन, दिस इज इन पेज नंबर 169. ओल्ड बुक, न्यू बुक, ओल्ड बुक है शायद, है ना, 169. There is a topic also, relationship between CP and CV for an ideal gas. ठीक है, it is only restricted to ideal gas. Fine. हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं.
from the numerical perspective. Now moving on, please see. Measurement of heat. Measurement of heat. There are two ways in which we measure heat whenever there is a chemical change happening, जब भी chemical reaction होता है. We call that type of that device calorimeter. दो तरह के calorimeter होते हैं. एक होता है coffee cup calorimeter. Coffee, I hope spelling is right. Coffee cup calorimeter. In coffee cup calorimeter, measures, ये कैसे मेजर करता है हीट को? MEASU. Measures at constant pressure. ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? QP मिलता है, which is equal to the enthalpy of reaction. But it is not very accurate. ठीक है, इसमें heat dissipation बहुत ज्यादा हो जाता है. It is not very accurate. So in order to have accurate measurements, we use bomb calorimeter. Bomb calorimeter. Now, what does it do? Main Related. Sorry? The two names are not related at all. I don't understand what you are asking. I'm not asking, I'm telling, like coffee cup and then bomb, they're not related at all. अच्छा, they are not related. They're completely different. You are saying that. मतलब बहुत ज्यादा difference है दोनों में. Yes. अच्छा अच्छा. Measures at constant volume. ठीक है. So if it is measuring at constant volume, then QV it is equal to what? Delta U. So it actually measures the change in internal energy. Coffee cup calorimeter इस वजह से कहते हैं because you can even have a cup इस तरह से and this cup is filled with water. अब इसको पानी से क्या कर दीजिए? फिल कर दीजिए. ठीक है. Once you have filled it with water, then you will add the reaction mixture. ठीक है, पानी में रिएक्शन होगा. You will add the reaction mixture. इसको ढक के ऊपर एक थर्मोमीटर लगा दिया आपने. ठीक है, you have kept the thermometer. रिएक्शन हो रहा है. थर्मोमीटर में आपके पास क्या आएगा? There will be delta T. आप delta T यहाँ पे इस तरह से मेजर कर सकते हैं. Now because this is done in a constant pressure, 1 atmospheric pressure है यहाँ पे, that is why. और volume यहाँ पे constant नहीं है because अगर heat, if the reaction mixture is getting heated, then the volume of water may also increase. ठीक है, जो reaction mixture का volume है वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है because heat निकल रहा है तो. ठीक है, if it is getting warm. That is why we call it coffee cup calorimeter है ना. उसको coffee cup में भी बनाया जा सकता है. It is so small. And bomb calorimeter is a very elaborate thing. आपके पास ऐसे करके like you have a fixed container इस तरह से completely, this wall is completely adiabatic, heat अंदर बाहर कुछ नहीं होगा. Then you have a very small section. एक second, let me put it in from the NCERT से बना के दिखा देता है आप लोगों को bomb calorimeter. बस थोड़ा हल्का फुल्का आपको पता रहना चाहिए होता क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर. मेन आपके पास जो बात है ना वो ये है कि इट मेजर्स एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, और ये क्या मेजर करता है? डेल्टा यू. फोटो वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं. ध्यान से देखिए. सो ये देखिए, दिस इज कंप्लीटली व्हाट? दिस इज कंप्लीटली सील्ड है ना. इट इज कंप्लीटली सील्ड. नाउ दिस इज, यहाँ पे आपके पास क्या है? ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, you have just oxygen, O2 gas under pressure, certain pressure is there. Now this is also sealed, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे बढ़ नहीं सकता है. प्रेशर बढ़ सकता है हाँ, if the temperature is going to increase, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा particles will start moving very fastly, and when they are moving very fastly, pressure वहां पे बढ़ सकता है. So you can say that volume यहाँ पे constant है, pressure लेकिन बढ़ सकता है. And now this is completely sealed, और आपके पास, अच्छा एक सेकंड, this is sealed but this wall is very diathermic. Diathermic का मतलब
हीट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। अगर अंदर माहौल, अगर टेम्परेचर अंदर बढ़ गया, ठीक है, तो यहां से यहां चल जाएगा। बट दिस वॉल हियर इट इज सील्ड, टेम्परेचर बाहर से अंदर नहीं आएगा यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, आपने यहाँ पे दो फायरिंग लीड्स रखी हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू बर्न इट। यू विल बर्न इट लाइक दिस। यहाँ पे जो सैंपल रखा हुआ है, सैंपल इज ऑल्सो गोइंग टू गेट बर्न। आप जनरली जो फूड में लिखा रहता है ना इतना कैलोरी, वो यही बॉम्ब कैलोरीमीटर से यूज होता है। उसको जला के उसमें कितनी कैलोरीज है उसको मेजर करने के लिए रखा जाता है। सो एज सुन एज इट विल बर्न, there will be temperature increase here inside the, there will be a temperature increase inside the this small section। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल मूव, मतलब हीट जो है डिसिपेट होगा टुवर्ड्स वाटर। एंड दिस इज अ स्टरर। स्टरर इज यूज्ड टू हीट द वाटर यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि एक जगह ज्यादा हीट हो गया बाकी जगह नहीं हुआ, हल्का हल्का स्टर करता रहेगा तो पानी घूमता रहेगा। नाउ इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल बी शोन इन दिस थर्मोमीटर। तो बेसिकली कर क्या रहा है, इट इज मेजरिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर at constant volume, that's it, measures at constant volume। now अब इसके calculation से, like if you are calculating these things then you will have to consider delta U because volume constant है, और कॉफी कप कैलोरीमीटर यूज कर रहे हैं तो डेल्टा H because वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और if you wrote these 2 points, कॉफी कप कैलोरीमीटर एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब चलिए सवाल करते हैं, फाइन, डोंट हैव टू वरी टू मच। वन ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न, ठीक है। देन वी हैव कॉपी कीजिए सर। Let me know once you're done writing the question. Done writing the question? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. सवाल को देखते हैं हम। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। 1 gram of graphite is burned in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin। तो टेम्परेचर दिया हमारे पास 298 Kelvin at 1 atmospheric pressure according to the equation, blah blah blah।
during the reaction temperature rises from 298 to 299 Kelvin. Delta T it is equal to 1. ठीक है, 1 Kelvin डेल्टा टी है आपके पास. ठीक है, 298 से 299 ना. If the heat capacity of the bomb calorimeter का heat capacity क्या होगा? CV. It is equal to how much? 20.7 kilojoule per Kelvin. For the above reaction, इस reaction के लिए ना, please remember इस reaction के लिए. For what? For this reaction at 298 Kelvin and 1 atm. इतना दिया हुआ है for this particular reaction. अब देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे किया जाएगा. सबसे पहले तो they are saying that डेल्टा आपके पास क्या दिया हुआ? CV दिया हुआ, डेल्टा T दिया हुआ, and we are using bomb calorimeter. Since we are using bomb calorimeter, we will say that it is going to measure delta U. Fine. और delta U या फिर आप इसको ये समझिए that it is going to give you Q in the presence in the constant volume. Q in constant volume it is equal to how much? Q in constant volume it is equal to CV into delta T. ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का CV है आपके पास, डेल्टा T भी है आपके पास. व्हाट इज CV? 20.7 into 1000 joules per Kelvin. The change in temperature it is equal to 1 Kelvin. ठीक है, so it will be equal to 20700 joules. This is the QV. इतना समझ में आया? सोनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है, अब ये समझिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है इतना आपके if the heat capacity of bomb calorimeter is इतना, what is the enthalpy change? ठीक है, so what we have calculated from here, they are asking enthalpy change for the above reaction. Fine. आपको यहाँ पे क्या मिला है? Heat at constant volume मिला. This heat has been given out. This heat has been given out when 1 gram of graphite, 1 gram of graphite was combusted. इतना हीट आपको कब मिला? जब 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज कंबस्टेड. ठीक है, इन द रिएक्शन अगर आप देखें 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव CO2, है ना. तो रिएक्शन में कितना है? 1 मोल है. इसको ध्यान से सुनिएगा, इट इज 1 मोल. एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, वो 1 ग्राम के बारे में नहीं पूछ रहे. सो आई विल राइट फॉर 1 ग्राम हमने इतना निकाला है, तो 1 मोल के लिए प्लीज राइट हियर फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट Q will be equal to माइनस, अच्छा यहां पे हमने माइनस साइन नहीं लगाया, एक सेकेंड, I have to revisit here. यहाँ पे आप बताइए द यूनिट सॉरी द साइन ऑफ Q विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव जब ये रिएक्शन होगा. सो हीट इज गिवन टू द सिस्टम और इट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. When combustion happens, Given to out. the system. Out. Given to the system या out of the system. क्या ख्याल है? जब कंबशन Given. होगा इस रिश्ता Given out. आउट ना, गिवन आउट तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम. देन यू विल कैलकुलेट फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट. फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट द QV will be equal to minus 20700 into 12, because in 1 mole of graphite there will be 12 gram of carbon. Now since QV it is equal to delta U, I will write delta U it is equal to कितना हो जाएगा ये 24 and into 12, 60 72 84 2484 00 माइनस है ना 24 80 लिख दिया हमने 2484 होगा.
248400 joule, and because it is per mole, be joule per mole. Is this fine, guys? Tell me this multiplication. 207 into 12, it is equal to 2484. Yes, sir. Yes, okay. Now we have got the delta U. Now they are asking for enthalpy, so delta H will be equal to delta U plus delta Ng RT. Delta U is equal to minus 248400 plus delta Ng. Ng is number of moles of gas in the product minus reactant. Product में कितना है? Here we have 1 mole of gas, और reactant में भी हमारे पास कितना है? 1 mole of gas, right? So delta Ng is equal to 0. And delta Ng is what? It is 0. So you don't have to consider this. Delta H आपका यही हो जाएगा. ठीक है? So delta H, it is equal to minus 248.4 kilojoule per mole. Please copy this down. I hope you have written the question. Sir, Yes, tell me, Noha. how is delta NgRT equal to 0? The reaction is carbon, which is solid, plus O2, which is gas, is giving CO2, which is gas, right? Correct? Yes, sir. Number of moles of gas in the product, 1. Number of moles of gas in the reactant, 1. This is the solid, so you will not consider it. So delta Ng will be equal to product minus reactant. Product में 1 है, reactant में भी 1 है, so it will be equal to 0. So 0 multiplied by RT will be also 0. ठीक है? Okay, sir. Yes.
Let me know once you're done. Done, sir. Anyone still writing? No, sir. नो, ठीक है। अभी एक और सवाल, ठीक है ना। अब इस सवाल से भी आपको देखिए, जैसे आपने यहाँ पे समझा कि ये जो वर्ड था ना, अबव रिएक्शन, ठीक है, दिस वर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मल्टीप्लाइड बाय 12, मेक सेंस, है ना? क्या ख्याल है? ऐसे ही तो हुआ, बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर दिस अबव रिएक्शन। दैट इज वाई हमने पहले क्या किया, 1 ग्राम जो हमें, लाइक वी burnt 1 gram and we calculated for 12 grams. Why? Because in the reaction we have 1 mole. So this into 12 is happening only why? 12 तो कहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, but this is happening only because they are asking the enthalpy change for the above reaction and not for the above process जो आपके पास वहां पे 1 ग्राम को बर्न किया है, ठीक है। 1 ग्राम को बर्न करने के बाद you have got this much joules of heat. They were not asking that, they were asking what happens when you, what is the enthalpy change for the above reaction. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, इन सब चीजों का बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 60 gram of aluminium, not working, 60 gram of aluminium from 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी दिया हुआ इन्होंने कितना, 20, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द यूनिट्स बिकॉज डेल्टा टी है यहाँ पे, केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होता है, ठीक है। when you are having delta T, change in temperature, this is 20, and they are saying molar heat capacity of aluminium is 24 joules per mole per Kelvin, ठीक है। मोलर cm दिया हुआ इन्होंने कितना, 24 joules per mole per Kelvin। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है ना। यूनिट्स पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पे। cm कितना दिया इसको ध्यान से देखिए, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, प्लीज सी, जूल्स पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, समझिए। 24 joules of heat is required to increase the temperature of 1 mole of aluminium by 1 Kelvin। यही तो मतलब है इसका, नहीं? क्या मतलब समझ में आया यूनिट्स का आपको? yes or no, please tell me, guys। 24 joules of heat is required to increase the temperature of 1 mole of aluminium by 1 Kelvin। Make sense? yes or no, please tell me, guys। Yes, sir. ठीक है। अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास 2 मोल है, ठीक है, इस सीएम का मतलब तो ये हुआ ना, टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ, या फिर 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ aluminium, 24 joule is required, is needed to increase 1 degree Celsius या 1 Kelvin of 2 mole of aluminium, कितना होगा, 48 joules is needed। Make sense? yes or no, please tell me, guys। ठीक Yes, है। sir. अब यहाँ पे आपके पास how many moles are we having, ये देखना है आपको, और आप इंक्रीज कितना कर रहे हैं, 20 इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 60/27, सही है। 27 होता है ना मोलर मास, या कुछ और होता है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम? 27, राइट? नहीं यार, Yes, sir. 27 ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 60/27, डेल्टा टी is equal to 20। That is why the heat required will be equal to how much? cm कितना आपके पास, 24 multiplied by the number of moles, it is equal to 60/27 into कितना डिग्री इंक्रीज करना है, 20।
फॉर ईच मोल 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर ईच केल्विन इंक्रीज 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों को सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू, सी हाउ मच क्यू यू आर गेटिंग। कैंसिल हो जाएगा ना कुछ कुछ तो, 3 से होगा, 8 जा 9 जा, 3 3 जा एंड 3 20। Sir, approximately 1067. हाँ ठीक है, 1067 जूल ना, so this will be Yes, sir. equal to how much? 1.07 किलो जूल। ठीक है, कॉपी दिस डाउन। देखिए फॉर्मूला वार्मूला नहीं यूज किया हमने, सिर्फ इसी से इस्तेमाल है ना, यूनिट्स का इस्तेमाल करें। सो मेनी टाइम्स यू हैव टू कीप इन द माइंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट से ही आपको क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए व्हाट इज दिस, सीएम दिया हुआ है आपको, राइट, सीएम, सीएम इट इज इक्वल टू, जूल क्या हो गया, क्यू, मोल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, इनटू डेल्टा टी, है ना, फॉर्मूला बन गया यूनिट से। आपको क्या निकालना था, क्यू निकालना था, तो क्यू के लिए आपने क्या किया, सीएम इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा खेल आप लोग कर सकते हैं। दिस इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स में ऐसा होता होगा, है ना, जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते होंगे तो कई बार आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ती होंगी, उस या फिर करने से आसानी हो जाती है। तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द फॉर्मूला, यू कैन गेट द फॉर्मूला बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट्स। कॉपी एवरीवन, यस नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और